میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ ہم نے وزیر منڈیات کو حکم دیا تھا کہ ہمارے حضور ایسا بیل پیش کیا جائے جس کا شجرہ مبارک کم از کم 7 نسلوں سے شاہی ہو۔ باخدا اس نے ہمارے سامنے دربار میں کھڑے ہو کر ایسے گردن اکڑائی جیسے وہ ہندوستان کا شہنشاہ ہو۔ باخدا اس اکڑی گردن کے ساتھ کہنے لگا، تجھ کو پکارے میرا پیار، تجھ کو پکارے میرا پیار، آجا میں تو مٹا ہوں تیری۔ عوام تو جانور لینے کے لیے منڈی میں جاتے ہیں، لیکن ہم منڈی کو محل میں بلاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، اس دفعہ محل میں ہیرا گستاخ۔ السلام علیکم ناظرین، عام پبلک تو قربانی کے گوشت کی تھیلیاں بانٹنے اور گوشت ہضم کرنے میں مصروف ہوگی، لیکن آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا موضوع جسے دیکھ کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ آپ نے کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی بکروں پر، کسائیوں پر، لیکن ہمارا آج کا موضوع ہے تاریخی۔ جی، میں بات کر رہا ہوں بادشاہ سلامت کے دور کی، کہ بادشاہ حضرات کیسے بڑی عید مناتے تھے۔ کیا وہ عام رعایا میں جا کر جانور پسند کرتے تھے یا ان کے لیے کچھ خاص انتظام ہوتا تھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں قصر شاہی کے شاہی لانچ میں۔ یہ کوئی شاہی لانچ نہیں ہے، یہ بکواس کر رہا ہے۔ یہ تو گرین سکرین والا اسٹوڈیو ہے۔ کیوں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ بند کرو اس کا کیمرہ۔ ابے چپ ہو جا، چپ ہو جا، کیمرہ مین اس کا کیمرہ بند کرو، بند کرو اس کا کیمرہ۔ حد ادب۔ پہلے ہی بجٹ نہیں ہے، اوپر سے یہ بکواس کر رہا ہے۔ جنبش مکن ہوشیار باش، ذل الہی عالم پناہ شہنشاہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقت کے فرمانروا ذل الہی شہنشاہ معظم عالی جا جناب بادشاہ سلامت۔ گستاخ۔ بڑی عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ میرے صحافت کہو، ہماری رعایا خوش ہے نا ہماری سلطنت لذیذیہ میں؟ بادشاہ سلامت، سلطنت لذیذہ؟ لذیذہ نہیں، امیرہ۔ چل ایسے نہ کیا کرو، خود ہی لکھتے ہو اور بھول جاتے ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ تم نے خود کہا تھا سلطنت لذیذیہ کہنا ہے، یہ بڑی عید کا پروگرام ہے، پھر خود لکھتے اور بھول جاتے ہو۔ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ ہماری سلطنت لذیذیہ میں کبابوں کی خوشبو پھیل چکی ہے یا نہیں؟ کباب؟ آپ بادشاہ سلامت ہیں، کوئی نذیر تکہ کبابیہ نہیں۔ پھر بکواس، پھر بکواس۔ حالی جا، خوشبو تو پوری سلطنت میں پھیل چکی ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے عوام کے آنسو پتہ نہیں کہاں سے نکل رہے ہیں۔ گستاخ۔ بادشاہ سلامت، آپ ہمیں یہ بتائیں، شاہی خاندان کی قربانی کیا عام رعایا سے مختلف ہوتی ہے؟ میرے صحافت، شاہی قربانی تو دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو دیکھو آپ کی۔ حد ادب۔ گستاخ۔ باخدا ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں۔ عوام تو جانور لینے کے لیے منڈی میں جاتے ہیں، لیکن ہم منڈی کو محل میں بلاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، اس دفعہ محل میں ہیرا گستاخ۔ میرا مطلب ہے اس دفعہ منڈی لگے گی محل میں۔ اپنے الفاظ پر قابو رکھو ورنہ ہم تمہارا سر قلم کروا دیں گے۔ رحم عالم پناہ، ذل الہی۔ ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ پھر بکواس۔ ہاں، میرے صحافت ہم کہاں تھے؟ بادشاہ سلامت، تین کیا سینا اسکرپٹ یاد کر لیں؟ ہم کہاں تھے بتاتا ہوں۔ باخدا یہ کیا بکواس ہے؟ منڈی کو آپ محل میں بلاتے ہیں، اس پر غور فرما رہے تھے ذل سبحانی فرمانروا جناب بادشاہ سلامت۔ ہاں ہمیں یاد آ گیا، باخدا ہمیں یاد آ گیا۔
हमने वजीर मंडियात को हुक्म दिया था कि हमारे हजूर ऐसा बैल पेश किया जाए जिसका शजरा मुबारक कम से कम 7 नस्लों से शाही हो। 7 नस्लों वाला शाही बैल? हाँ, शाही बैल। वो कैसे हजूर? जो आम चारा न खाता हो बल्कि आवाम का हक भी खाता हो। है जी? नहीं, ये हम क्या बर्जबान बोल चुके कि हम क्या बकवास कर बैठे। हमारा मतलब है जाफरान मिला दूध, शाही मिलाप वाला देसी घी और पिस्ते बादाम खाता हो। बादशाह सलामत, वो बैल था या पहलवान था? पिस्ता बादाम खाता हो? बाखुदा जब वो महल में तशरीफ लाए तो उसको तोपों की सलामी दी जाए। बादशाह सलामत, बैल के लिए तोपों की सलामी? कमाल नहीं है? और इसके आने पर शाही बैंड ये धुन बजा रहा हो। तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। हाँ, शाही बैंड ये धुन बजा रहा हो। चांदे बादशाह, एडा तू कपूर खानदान दा लखते जिगर, तुमको पुकारे मेरा प्यार। मैं नहीं करना है रो। कमाल, एक ते एडे एडे औखे लफ्ज़ तू लेने विच एडे मुश्किल है तू आगे दिता नाले मैनू। एक ते औखे लफ्ज़ बोलना नाले तेरे को बेइज्जती करवावां। यार ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ। ਚੰਗਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਓਏ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ। ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। चिल्ले इलाही, ਓਏ इज्जत माँ, ਓਏ ਓਏ शहनशाह मुअज्जम, फरमा रवा, जिल्ले सुबहानी। ਓਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। अच्छा, कैसा तू उजड़ी सल्तनत दा बादशाह है? गलती हो गई यार, की हो गया? हो जाती गलती। बादशाह सलामत, बैल के अलावा भी कुर्बानी के जानवरों का हिसाब किताब होता था। मीरे सहाफत, तुम हमारे शाही जानवरों का मुकाबला इन पालतू दुम्बे और बछड़ों से कर रहे हो। बाखुदा हमारे शाही अस्तबल में काबल और कंधार से दुम्बे और बछड़े आते हैं, और गुजरात से सफेद और चमकदार बैल आते हैं, और बाखुदा अफ्रीका से हाथी तशरीफ लाते हैं। हाथी की कुर्बानी? इनके सींगों पर सोना मढ़वाया जाता है और इन्हें अत्रे गुलाब से गुस्ल दिया जाता है ताकि पूरा महल खुशबू से मुअत्तर हो जाए। बादशाह सलामत, हाथी की कुर्बानी? तो मैंने तो ऐसा लिखा ही नहीं स्क्रिप्ट में। देखिया ना, फिर वही बकवास। ये आपने खुद कहा था कि बड़ा जानवर बोलना है, और उस बादशाहत के दौर में तो हाथी ही सबसे बड़ा जानवर होता है। ओ बादशाह सलामत, ऊंट दी गल होंदी सी पई, तू विच हाथी पा लिया। बाखुदा ये तुम क्या कह रहे हो? ते स्क्रिप्ट च लिखना सी स्क्रिप्ट च। चंगा भला मेरा टेंपो बादशाह दा बनया सी। नाज़रीन, एहो जे राइटर दी सब तो बड़ी बीमारी है वे, जे इन्हां नूं पूछिए ना कि लिखिया की है, कि है की चीज है, ये मेरे दिमाग विच सब कुछ है। इत्थे दिमाग ही पेश कर देना सी। फटा राइटर वेख लो, कागज दी कश्ती दी नुक्कर दे उतले हिस्से वर्गा तेरा नाके। हद अदब। ए मेरी लाइन सी। फटा बादशाह, वो मैं बादशाह वां। और बादशाह सलामत, ये जिबा का मरला कैसा है? जल्लाद को महल में बुलाते थे या कसाब को? मीरे सहाफत, तौबा करो मीरे सहाफत। जल्लाद तो सिर्फ गर्दनें उड़ाया करते हैं, और जनाब ईद पर उसकी छुट्टी होती है। हमने पड़ोसी सल्तनत से 7 फुट लंबा कसाब इंपोर्ट किया था। जिल्ले इलाही, इतनी बड़ी सल्तनत में कसाब नहीं मिला आपको, या उसने टाइम नहीं दिया आपको जो आप पड़ोसी सल्तनत से कसाब को इंपोर्ट कर रहे हैं? मत पूछो, ईद के दिन हमारी सल्तनत के कसाबों का जाहो जलाल हमारे शाही जाहो जलाल से भी 4 हाथ आगे होते हैं। बाखुदा ईद के 1 महीना पहले हमने शाही कसाब कामू पहलवान को दरबार में बुलवाया और कहा
ईद के पहले दिन 7 बजे तुम शाही अस्तबल में पहुंच जाना। हमारे शाही बैल की कुर्बानी करनी है। फिर गामू पहलवान ने क्या कहा? बाखुदा उसने हमारे सामने दरबार में खड़े होकर ऐसे गर्दन अकड़ाई जैसे वो हिंदुस्तान का शहंशाह हो। बाखुदा उस अकड़ी गर्दन के साथ कहने लगा, ओ यार बादशाह सलामत, दिल्ली के काजी साहब, वजीर आजम और कोतवाल साहब के बकरों का टाइम पहले से ही बुक है। ओ यार बादशाह सलामत, आपको मैं चौथे दिन का टाइम दे सकता हूँ, वो भी असर के बाद का। मर्जी है तो बताएं, वरना हम चलते हैं, आगे और भी गाहक खड़े हैं। बाखुदा इसी वजह से हमने कसाब को इंपोर्ट किया, पड़ोसी सल्तनत से, जिसकी छुरियां सोने और चांदी की होती थी। बाखुदा ज़िबा करते हुए जानवर की आंखों पर रेशमी पट्टी बांधी जाती थी और पसे मंजर में दरबारी गायक दरबारी राग आलाप रहे होते थे ताकि बैल को जहनी तनाव ना हो। वाह आलीजा, बैल भी कहता होगा, क्या कुर्बानी है, कुर्बानी हो तो ऐसी। और इतना गोश्त आप कैसे संभालते थे? उन वक्तों में तो फ्रिज भी नहीं होता था। देखो मीरे सहाफत, हम इंसाफ पसंद बादशाह है। उस वक्त हमारे यहाँ गोश्त फ्रीज करने का रवाज नहीं था बाखुदा। पहले हम किले के बाहर लंगर सजाया करते थे, देगे जड़ाई जाती थी। एक तरफ शाही कोरमा बन रहा होता है और दूसरी तरफ पिशावर के बावर्ची नमकीन रोस्ट बना रहे होते हैं। बाखुदा उस लंगर में अमीर गरीब दरबारी सबके सब एक ही सफ में बैठकर लंगर नोश फरमाया करते थे। और अगर गोश्त फिर भी बच जाता, बाखुदा उसको नमक लगाकर धूप में सुखाकर खुश्क गोश्त या शकारपुरी अचार बना लिया जाता है, फिर वो महीनों तक चलता। अच्छा, गोश्त की तकसीम का क्या तरीकाकार है? हम इंसाफ पसंद बादशाह है, फिर हम गोश्त के बराबर 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा शाही बेगमात के मेके में जाया करता था और दूसरा हिस्सा सल्तनत के वजीर और मशीरों की नजर किया जाता था ताकि वो हमारे खिलाफ साजिश न कर सके। और बाखुदा तीसरा हिस्सा शाही वजीर किचन के हवाले किया जाता था। और बादशाह सलामत, गरीब अवाम का हिस्सा? गरीब अवाम के लिए हमने हुक्म सादर किया था कि शाही किचन के बाहर जो हड्डियां बची पड़ी हैं, इनकी यखनी बनाकर गरीबों में लंगर तकसीम किया जाए बाखुदा, ताकि वो भी शाही जानवर का लुत्फ उठाए और ईद का मजा ले। बादशाह सलामत, जो अपने पहले बकवास की थी, गरीबों के लिए लंगर लगाए जाते हैं, हर आम और खास और दरबारी को एक जगह बिठाकर लंगर खिलाया जाता है, वो क्या था? हद्दे अदब मेरे सहाफत, इस तरह की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, एड़ा राइटर है खुदा दी कसमे ने आख्या सी कि ए पैराग्राफ ना कॉमेडी नहीं होएगी, लोग हसणगे नहीं, तो इंज करी बोल दई मैनू री-एडिट कर लांगा। इस राइटर ने आख्या सी। हद्दे अदब, ए मेरी लाइन सी। बड़ा बादशाह, वो मैं बादशाह हूं। आलीजा की सखावत का जवाब नहीं। तो नाजरीन, ये था बादशाहों का ईद पर असल अहवाल। जहां कुर्बानी के नाम पर नुमाइश थी, ईद के नाम पर शाही याशियां थी और गरीब के हिस्से में सिर्फ हड्डियां। मेरे सहाफत, अब इस प्रोग्राम को खत्म किया जाए। तखलिया, हमारे पेट में पहले ही शाही कोरमे और गरीबों की बद्दुआओं के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। और हाँ मेरे सहाफत, जी 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 बादशाह सलामत, जाते हुए शाही हकीम से कहिएगा कि शाही फक्की पेश की जाए। तो नाजरीन, आइए इस ईद पर अहद करें कि हम अपनी कुर्बानियों को नुमाइश से पाक रखेंगे और अपने इर्द गिर्द के मौजूद हकदार तक उसका असल हिस्सा पूरी ईमानदारी और इज्जत नफ्स के साथ पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी घर ईद की हकीकी खुशियों से महरूम ना रहे। तो मुझे दे इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।